So hello everyone. So now we are doing Securities Contract Regulation Act, that is the SCRA Act, and it is indeed a very important topic for your exams. So we'll be covering the common topics in SCRA relevant both for old syllabus students and new syllabus students. At the same time I'll be marking you some additional rules for the new syllabus students. जो नए syllabus students हैं उनके लिए कुछ extra markings कराऊंगा मैं नए syllabus study mat से जो आपको साथ में रेफर करना है जो आपके लिए important है, right? So if I talk about Securities Contract Regulation Act, so what is the basic concept? What is the basic concept? The basic concept underlying this chapter is that, ध्यान से सुनना, so ध्यान से सुनना, the basic concept, the basic crux of the chapter. Earlier, the stock exchanges, the business of stock exchanges, I will say, were carried out by, ठीक है, earlier the stock exchanges or the business of stock exchanges were carried out by body of individuals. It was carried out by societies, ठीक है. And earlier what used to happen is that the members, यानी कि the brokers, used to exploit the investors. ये क्या करते थे? इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. And thereafter came the concept of corporatization and demutualization. Thereafter came the concept of corporatization and demutualization. Right. So now what has happened in this concept is that the business of stock exchanges, which was earlier carried out by individuals or the body of individuals or the societies that is registered under the Societies Registration Act, is now succeeded by another stock exchange, being a company. And what is the purpose for the same? For the purpose of assisting, regulating or controlling the business of, for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities carried on by such individuals or societies. यानी ये जो business था stock exchange का of assisting, regulating, controlling the business या फिर dealing of such securities, ये जो business societies या individuals carry out करते थे, कौन carry out करेंगे? Companies carry out करेंगे. This is what is known as the concept of corporatization. To facilitate corporatization came the concept of demutualization. तो demutualization में क्या हुआ? जैसे कि I told you कि the members or brokers used to exploit the investors because they had all the powers, they had the ownership rights vested with them. So demutualization में क्या हुआ? Means the segregation of ownership and management from the trading rights. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को ट्रेडिंग राइट से अलग कर दिया इन अकॉर्डेंस विद दिस स्कीम. एंड डू नोट दैट बोथ द डेफिनेशंस आर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. दोनों स्टार्ट होते हैं विद द वर्ड मीन्स. यानी कि जब भी कॉर्पोरेटाइजेशन होगा या जब भी डिम्यूचुअलाइजेशन होगा, देयर इज अ स्कीम दैट इज गोइंग टू बी मेड. सो नाउ अगेन एक क्वेश्चन राइज होता है कि उस स्कीम में क्या होगा, व्हाट विल बी ए पार्ट ऑफ द स्कीम. अब लॉजिकल सी चीज सोचो, व्हाट इज हैपेंड इज दैट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस which was carried out by body of individuals या which was carried out by the societies is now carried on by the corporates, is now carried on by the companies. तो लॉजिकली सोच के देखो what is going to happen. कंपनी क्या करने वाला है? व्हाट इज द कंपनी गोइंग टू डू? कंपनी इज गोइंग टू इश्यू शेयर्स, और शेयर्स के बदले क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मिलेगा. कंपनी शेयर देगा, बदले में कंसिडरेशन मिलेगा. नाउ द वोटिंग राइट्स बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न, द मेंबर्स विल गेट द वोटिंग राइट्स, है कि नहीं? तो वोटिंग राइट्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, बिकॉज अगर ज्यादा वोटिंग राइट मिल गया तो फिर से वही एक्सप्लॉइटेशन वाला इश्यूज होने वाला है. एंड नाउ बिकॉज द बिजनेस इज बीइंग सक्सीडेड ऑफ द ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज बाय द कंपनी वाला स्टॉक एक्सचेंज, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट जो पुराना वाला स्टॉक एक्सचेंज था उसका सारा प्रॉपर्टी, बिजनेस, एसेट, राइट, लायबिलिटीज, ऑल दोज आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, द एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, एंड ऑल दिस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन द स्कीम. It is very logical. It is going to be very easy. So scheme means a scheme for corporatization or demutualization of a recognized stock exchange which may provide for the issue of shares for a lawful consideration and the provision of trading rights, the restriction on voting rights, the transfer of business assets, rights, liabilities, contracts of stock exchanges, the legal proceedings, the transfer of employees and the other incidental matters.
So three definitions we have seen. One is the definition of corporatization, another is the definition of demutualization, and third is the definition of scheme. Then we have the definition of securities. Now do note the definition of securities is inclusive definition, it is not exhaustive definition. इसका मतलब है कि जो securities में आप देखने वाले हो इसके अलावा भी securities में हो सकता है. Now you consider, logically सोचो, whatever you can think, you just think and imagine in the definition of securities. क्या हो सकता है सर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, लेट्स मी से शेयर्स है क्या है ना, ये रहा शेयर्स. डिबेंचर्स हो सकता है, यस डिबेंचर्स इज देयर. म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, राइट, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, दैट इज डेरिवेटिव यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, या फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट दैट इज इशूड अंडर द सरफासी एक्ट, government securities, any other securities, right or interest in securities, all this comes under the definition of securities, that is the shares, debentures, bonds, debenture stocks, derivatives, units of the collective investment scheme, security receipt जिसकी बात हम सरफासी एक्ट के अंदर करने वाले हैं, government securities या फिर rights or interest in securities. So the definition of securities. Now we have some definition. First of all, we are coming to the definition of spot delivery contracts. First of all, we are coming to the definition of spot delivery contract. What is the definition of spot delivery contract? तो spot delivery contract, as the name suggests, again it's an exhaustive definition. मतलब सब कुछ spot में होने वाला है. Securities plus payment on the spot. Securities plus payment on the spot. Delivery of securities plus payment of price. Both are going to happen on the spot. On the spot मतलब होता है same day oblique the next day. Same day oblique the next day. खाली excluding the period of post, जो भी post में time लगेगा, excluding the period of post. या फिर if the transfer of securities is by way of dematerialized mode. अगर dematerialized mode में क्या होता है, हमेशा instant transfer होता है. So transfer of securities by the depository from the account of one beneficial owner to the account of another beneficial owner. तो spot delivery contract यानी which provides for the actual delivery of securities, the payment of price on the same day or the next day, the actual period of the excluded by the post, जो भी post में time लग रहा है, and transfer of securities from one account of one beneficial owner to the account of another beneficial owner. This is the definition of spot delivery contracts. उसके बाद we have certain definitions with respect to commodity derivatives. Commodity derivatives and the other goods. Commodity derivatives and the other goods. जैसे you have the definition of specific delivery contract, you have the definition of ready delivery contract. Specific delivery contract is particularly talking with respect to the definition of commodity derivatives. Particularly ये सिर्फ commodity derivatives के लिए ही बात कर रहा है, जबकि ready delivery talks about every other good other than the commodity derivative. तो स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉमोडिटी डेरिवेटिव. यहां कॉमोडिटी डेरिवेटिव की बात हो रही है जहां पे एक्चुअल डिलीवरी बाद में होने वाली है, फ्यूचर डेट में होने वाली है, ऑपोजिट टू द स्पॉट. फॉर द एक्चुअल डिलीवरी एंड ऑफ द स्पेसिफिक क्वांटिटीज और टाइप्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. तो यहां पे कर दीजिएगा स्पेसिफिक क्वांटिटीज और टाइप्स ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट ए प्राइस फिक्स्ड और इन द मैनर फिक्स्ड and the name of both the buyers and sellers are decided. मतलब specific delivery contract का मतलब ही क्या होता है, we are talking about the contract of a commodity derivative, name of the buyer is fixed, name of the seller is fixed, a future date is pre-decided, quantity is decided. ठीक है, तो this is what you mean by specific delivery contract. Exact opposite of specific delivery contract is a ready delivery contract. रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन ए कॉमोडिटी डेरिवेटिव. किसकी बात कर रहे हैं हम, अदर देन ए कॉमोडिटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. डू रिमेंबर, अदर देन ए कॉमोडिटी डेरिवेटिव. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी ऑफ गुड्स अदर देन कॉमोडिटी डेरिवेटिव. एंड जैसे कि कॉमोडिटी डेरिवेटिव में क्या होता था, स्पेसिफिक डिलीवरी में क्या होता था, फ्यूचर डेट, नेम ऑफ बायर एंड सेलर आर फिक्स्ड. यहां पे होने वाला है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट इमीडिएटली. और इमीडिएटली का मतलब है यहां पे नॉट एक्सीडिंग 11 डेज. पेमेंट इज गोइंग टू बी मेड इमीडिएटली, और इमीडिएटली का मतलब है यहां पे नॉट एक्सीडिंग 11 डेज. और ये जो पीरियड 11 डेज का, दिस पीरियड ऑफ 11 डेज कैन नॉट बी इवन एक्सटेंडेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज. दिस पीरियड ऑफ 11 डेज कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द parties. So all of this are the important definitions of the chapter. The definition of securities, the definition of corporatization, demutualization, scheme,
specific delivery, commodity derivative, spot delivery contract, red delivery contract. All of these are the important definitions of the chapter. A few more definitions you will see in your question bank, whichever question bank you are referring, जो कि basically SFM based है, so that is why I have not taken those definitions over here. So first of all आप क्या करोगे, इन definitions को अच्छे से go through कर लोगे, because आपके एग्जाम के लिए definitions are really important. Now coming to the chapter, सबसे पहले आई हैव गिवन यू नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एससीआरए सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एससीआरए. एससीआरए किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा. सो डू रिमेंबर एससीआरए किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा. ऑल द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एंड द गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ ऑथोरिटीज. एससीआरए एक्ट उनको एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, it is not applicable to local authorities, it is not applicable to the government, it is not applicable to RBI, it is not applicable to local authorities. किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है. गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, RBI को एप्लीकेबल नहीं है, लोकल ऑथोरिटीज को एप्लीकेबल नहीं है, या एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय ए स्पेशल लॉ, एनी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय ए स्पेशल लॉ, या एनी पर्सन हु हैज अफेक्टेड एनी ट्रांजैक्शन विद और थ्रू द एजेंसी. किसको 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 एससीआरए एप्लीकेबल नहीं है. एससीआरए इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, एससीआरए इज नॉट एप्लीकेबल टू द आरबीआई, एससीआरए इज नॉट एप्लीकेबल टू लोकल ऑथोरिटीज. गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, आरबीआई को नहीं है, लोकल ऑथोरिटीज को नहीं है. Any corporation set up under a special law. Yeah, any person who has affected any transaction with the help of such agencies. Now, a beautiful question is drafted from section 28. A beautiful question. That is, so you see the question is, Mewar Rural Financial Corporation set up under a special statute issued bonds to the public directly and not through stock exchange. तो normally क्या होता है कि whenever the bonds are being issued to the public, you have to always list it first on a stock exchange, तभी आप public को issue कर सकते हो, तभी आप public को issue कर सकते हो. Now ये शेयर की listing की सारी बातें कहाँ दी हुई है, SCRA Act में ही तो दी हुई है. But in this question, because it is set up under a special statute section 28 के हिसाब से SCRA Act is not applicable to such a corporation, and इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये लोग आराम से पब्लिक को डायरेक्टली इश्यू कर सकते हैं. They have not violated any of the provisions of the SCRA Act. It's a beautiful question जो एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. Now do remember, if we talk about this chapter, that is the SCRA Act, the MIBAP of this chapter is again going to be the SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो जगह जगह यू आर गोइंग टू सी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जगह जगह सेबी को डेलीगेट किया हुआ है. सो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आई विल बी आस्किंग यू किसका अप्रूवल चाहिए, आप मुझे बोलोगे सर सेबी का अप्रूवल चाहिए. मैं आपसे पूछूंगा किसका अप्रूवल चाहिए, आप मुझे बोलोगे सेबी का अप्रूवल चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि यू आर सीइंग द वीडियो लेक्चर्स, तो आप मुझे जवाब कैसे दोगे, बट व्हेनेवर आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, आप इमेजिन करोगे मैं आपके सामने बैठा हूं और आप उसका जवाब सोचोगे. यू विल थिंक ऑफ दैट रिप्लाई इन द माइंड, एंड ओनली आफ्टर दैट, आफ्टर यू नो थिंकिंग दैट रिप्लाई इन द माइंड, आप क्या करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले. Now in this entire chapter a few things are going to be common. In this entire chapter a few things are going to be common. For example, I am going to ask you, you know, who is going to authorize this, आप बोलोगे सेबी. किससे परमिशन लेना है, सेबी. Most of the cases में you are going to see सेबी. Next I'll be asking you, when will be the SEBI authorized, what will be the SEBI. तो कुछ कॉमन चीजें जैसे यू नो जब पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, व्हेन इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, व्हेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो पब्लिक इंटरेस्ट में जब होगा, सेबी क्या करेगा, सेबी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. व्हाट इज द सेबी इज गोइंग टू डू, इज सेबी इज गोइंग टू गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. जब पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, देन सेबी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. अपील्स वाले वीडियो के अंदर आई ऑलवेज टेल यू, यू नो अपील्स का जो वीडियो है आपका, वहां मैंने आपको बताया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को वी ऑल्सो कॉल एज ऑडी ऑल्टरम पार्टम, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम. देन उसके बाद वन कॉमन थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर इज, अच्छा सेबी से पूछा, सेबी ने देखा पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं, सेबी ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, एंड सेजी ने एप्लीकेशन दे दिया या रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. दैट इज गोइंग टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. सो दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी ऑलमोस्ट इन द एंटायर चैप्टर. पब्लिक इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन दैट वी आर गोइंग टू सी इन द इंटायर चैप्टर. तो सबसे पहले
A stock exchange needs recognition. A stock exchange needs recognition. अब देखना, because these are the summary notes, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मसाला मिसिंग रहेगा, जो मसाला आपको मेन नोट से मिलेगा, जैसे ये जो लैंग्वेज वाला मसाला है, राइट. दैट इज व्हाई आई हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड यू कि गो थ्रू ए क्वेश्चन बैंक फॉर योर प्रैक्टिस, एंड दैट एडिशनल लैंग्वेज वाला पार्ट यू कैन इंक्लूड इट इन द समरी नोट्स इटसेल्फ. सो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट ए स्टॉक एक्सचेंज को क्या चाहिए? रिकॉग्निशन चाहिए. सो व्हेन स्टॉक एक्सचेंज नीड्स अ रिकॉग्निशन, इट विल अप्लाई टू, किसको अप्लाई करेगा वो आप बताओगे मुझे. सर क्या बात करते हो, सेबी बोला तो सही, अपने माय बाप इज द सेबी, तो एप्लीकेशन इज मेड टू द सेबी. तो सेक्शन 3 talks about the application for recognition of the stock exchanges, where the stock exchanges will go and apply to the SEBI, please give me recognition. SEBI, please give me recognition. Then SEBI is going to see whether the scheme is in public interest. SEBI देखेगा public interest में है कि नहीं. SEBI देखेगा whether it is in the interest of the investors, and SEBI will ask to furnish certain applications. SEBI will ask to furnish certain documents, and after examining all the documents, if the SEBI feels that it is in public interest, SEBI will grant the recognition. SEBI क्या करेगा? recognition grant कर देगा. तो section 3 talks about application of recognition and section 4 talks about granting of recognition. मतलब section 3 में stock exchange SEBI के पास जाता है और बोलता है SEBI मुझे recognition दे दो ना, और section 4 में SEBI बोलता है recognition ले लो, and section 5 talks about withdrawal of recognition, मतलब recognition वापस दे दो भैया. तो स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन चाहिए. सेक्शन 3 में सेबी के पास गया, सेबी रिकॉग्निशन दे दो ना. सेक्शन 4 में सेबी ने बोला ले लो, कौन मना कर रहा है. सेक्शन 5 में सेबी ने बोला वापस दे दो भैया. So section 3 application to be made to the SEBI. Now this application is to be given with 4 information. This application is to be given with 4 information. You have to remember what is this 4 information. The question can be asked separately as well. There are 4 information which is to be provided with the application while applying to recognition of the stock exchange. One is the information. Do remember, in the stock exchanges we don't use the word board of directors, we rather use the word governing body. क्या यूज करते हैं हम लोग? governing body यूज करते हैं, governing body यूज करते हैं. Then हम लोग brokers को members बुलाते हैं, we call them as the members. So what are the 4 basic information we are going to give? Constitution of governing body and their powers of management. Constitution of governing body में कौन कौन होने वाला है? The powers and duties of the office bearers of the stock exchange. The powers and duties of the office bearers of the stock exchange. द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स. कि अगर हम मेंबर की बात करें, मतलब ब्रोकर की बात करें इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो उनका एडमिशन का कोई तो क्राइटेरिया रहेगा, सस्पेंशन का कोई तो क्राइटेरिया रहेगा, एक्सपल्शन का कोई भी क्राइटेरिया तो रहेगा. नाउ इन द न्यू सिलेबस व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन द रूल्स फॉर दिस क्राइटेरिया. एडमिशन का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सस्पेंशन का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एक्सपल्शन का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा. And finally, procedure for registration of partnership firm as a member. Procedure for registration of partnership firm as a member. Yani section 3 talks about application for recognition of stock exchanges, and there are 4 information that is to be provided with the application. One is the constitution of governing body and the powers of management. Another is the powers and duties of the office bearers of the stock exchange. Third is the admission, suspension and expulsion criteria. Fourth is the procedure for registration of partnership firm as a member. कौन सा 4 information है? साथ साथ repeat करोगे सर. Constitution of governing body and the powers of management, all powers and duties of office bearers of the stock exchanges, admission, suspension and expulsion of members, and fourth is the procedure for registration of partnership firm as a member. इन सेक्शन 4 वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन. भैया रिकॉग्निशन ले लो. अब रिकॉग्निशन देगा तो ऑब्वियसली इट विल सी द पब्लिक इंटरेस्ट, इट विल ऑब्वियसली सी द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट कि हमने रिकॉग्निशन दे दिया. बट रिकॉग्निशन देने से पहले सेबी इज गोइंग टू इंपोज सर्टेन कंडीशंस. सेबी क्या करेगा? कुछ कंडीशंस इंपोज करेगा. ओनली आफ्टर इंपोजिंग द कंडीशंस सेबी विल ग्रांट द रिकॉग्निशन. तो क्या क्या कंडीशंस लगा सकता है सेबी? कि जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स का क्वालिफिकेशन हम प्रिस्क्राइब करेंगे. व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स? सो सेबी में ग्रांट रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1, द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. Condition number 2, SEBI may also specify the manner in which the contracts will be entered. SEBI may also specify the manner in which the contracts will be entered. Condition number 3,
सेबी विल इम्पोज अ लिमिटेशन कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सेबी एक कंडीशन लगाएगा कि ठीक है आपको रिकॉग्निशन चाहिए कोई बात नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड होंगे आपके वहां पे, बट दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 3। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ईच ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस बाय सच मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3। एंड द फोर्थ कंडीशन जो सेबी लगाने वाला है कि भाई मेंबर्स का अकाउंट्स हम मेंटेन करके चलेंगे, जब भी हमें अकाउंट्स की जरूरत पड़े हम मांग लेंगे, एंड जब भी हमें ऑडिट करवाना हुआ हम उनको ऑडिट कराएंगे, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो सेबी में ग्रांट रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू द 4 कंडीशंस। पहला, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड another point is the manner in which contract shall be entered, the representation of CG not exceeding 3, and the manner of accounts and audit by the chartered accountants. You can also remember as आप शादी के लिए घर में जाते हो और बोलते हो भाई मेरी शादी करा दो। एक लड़की है वो जाती है और बोलती है अपने पापा को भाई मेरी उस लड़के से शादी करा दो। पापा क्या देखेंगे, पापा क्या कंडीशन लगाएंगे, बोलेंगे बेटा लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, सीए है कि नहीं है, शादी किस तरीके से करना चाहते हो, द मैनर इन विच यू वांट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर पापा बोलेंगे बेटा मुझे उस लड़के पर ज्यादा भरोसा नहीं है तो मैं ना अपने बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ भेजूंगा, बट लड़की बोलेगी नॉट एक्सीडिंग 3। एंड चौथा कि भाई मैं उस लड़के को ऑडिट कराऊंगा फिर ही शादी करने की परमिशन दूंगा। तो लड़के का क्वालिफिकेशन क्या है, शादी कैसे करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर करोगे, मेरे 3 बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ होंगे और लड़के का मैं ऑडिट कराने वाला हूं। मतलब सेबी ने 4 कंडीशंस इंपोज कर दिया, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मैनर इन विच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर्ड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एक्सीडिंग 3, एंड द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। एंड सपोजिंगली सेबी ने यहां पे क्या दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया एंड ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या सेबी रिकॉग्निशन विड्रॉ भी कर सकती है? So section 5 also talks about withdrawal of recognition. Section 5 also talks about withdrawal of recognition. Do include in your summary notes. तो इफ आई टॉक अबाउट विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली चीज है जब सेबी को लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो रहा, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स में नहीं हो रहा, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आफ्टर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, सेबी रिकॉग्निशन विड्रॉ कर सकती है एंड अगेन इट विल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट कि हमने रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया है। एंड बीच में आता है सेक्शन 4B, दैट इज द प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, वी हैव स्टडीड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, बिकॉज पहले तो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिविजुअल्स था, सोसाइटीज था, फिर कॉर्पोरेटाइजेशन का रिक्वायरमेंट आया, डीम्यूचुअलाइजेशन का रिक्वायरमेंट आया, सो दे हैव टू फुलफिल ए प्रोसीजर टू गेट देमसेल्फ कॉर्पोरेटाइज्ड, डीम्यूचुअलाइज्ड। So they are going to draft a scheme as we have discussed, and that scheme they are going to give to SEBI. So what the recognized stock exchange is going to do is they are going to submit a scheme to SEBI. Now SEBI is going to see whether the scheme is in public interest. If the scheme is in public interest, the SEBI will recognize the scheme, the SEBI will grant the condition, grant the recognition, allow the corporatization, demutualization and notify in the official gazette कि भैया corporatization हो गया। Obviously SEBI will impose some conditions for that. And if the SEBI feels that the scheme is not in public interest, after giving an opportunity of being heard, SEBI may cancel the corporatization, demutualization, and again it will be notified in the official gazette कि भैया हमने यहाँ पे corporatization allow नहीं किया है। तो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है कि recognized stock exchange is required to submit a scheme to SEBI, and then the SEBI is going to check whether the scheme is in public interest or not. If the scheme is in public interest, the SEBI may approve the scheme with modifications or without modification, and the publication will be done in the official gazette. And if SEBI feels that the scheme is not in public interest, SEBI may again reject the scheme after giving an opportunity of being heard and again notification in the official gazette. But अगर SEBI scheme को allow करता है तो SEBI कुछ conditions लगाएगा वहाँ पे। तो SEBI में while approving the scheme impose certain restrictions, and there are 3 restrictions given over here in section 4B. There are 3 restrictions given over here in section 4B that the SEBI may impose. One is the voting rights of the shareholders who are also the brokers. This is very very important. हमने scheme का definition में भी देखा था। Because the ultimate objective of corporatization and demutualization was to reduce that exploitation by the brokers, और वो तभी हो सकता है कि जब आप उनके voting rights restrict करो। Another restriction that the SEBI can impose is right of shareholders to appoint representatives, कि shareholders अपने अपने representatives appoint नहीं कर सकते, and that it can also restrict, it can also impose a condition that SEBI will appoint its own representative. SEBI अपना खुद का representative appoint करेगा, but up to 1/4 of total strength. तो सेक्शन 4B कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन से भी यहाँ पे 3 कंडीशंस लगा सकता है while approving the scheme. One is voting rights of the shareholders who are also the brokers. Another is right of shareholders to appoint the representatives, and SEBI can also appoint its own representatives up to 1/4 of total strength. Now logically
The main objective of corporatization and demutualization was that the brokers would not be allowed to exploit the investors. इसके लिए जरूरी है कि brokers का शेयर होल्डिंग कम हो और जनरल पब्लिक का शेयर होल्डिंग ज्यादा हो. That is why it has been provided that every recognized stock exchange shall ensure that at least 51% of the equity share capital must be held by the general public within 12 months. 12 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस को इंश्योर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्डिंग किसके पास हो, जनरल पब्लिक के पास हो. तो दिस इज सेक्शन 4B, प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन. सेक्शन 3 दैट इज गिविंग द एप्लीकेशन दिया, 4 में सेबी ने रिकॉग्निशन दिया एंड 5 में रिकॉग्निशन वापस छीन लिया. 4B इज कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन. सेक्शन 7A, सेक्शन 8B एंड सेक्शन 13A हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर. रैदर इट्स 8A नॉट 8B. एक साथ क्यों पढ़ने वाले हैं? 7A टॉक्स अबाउट पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स with respect to certain matters. 8 talk about setting up something known as clearing corporation. 13 talks about setting up something known as additional trading floor. Now we are doing all these 3 concepts together because तीनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है, अप्रूवल ऑफ सेबी चाहिए. अप्रूवल ऑफ सेबी इज नीडेड एंड सेबी कब अप्रूव करेगा? जब मामला पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, और जब सेबी अप्रूव करेगा दैट विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट. दैट इज कॉमन इन ऑल द 3. वो हर जगह कॉमन होना ही है. तो 7A, 8A एंड 13A सीक्वेंस में हो गया, बहुत इजीली हो गया हमारे लिए. 7A पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस टू मेक रूल्स दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स लाइक वोटिंग राइट्स, लाइक प्रॉक्सीज. देन सेटिंग अप ए क्लियरिंग ऑपरेशन अंडर 8A एंड 13A इज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर. एंड तीनों केसेस में हमें क्या चाहिए? अप्रूवल ऑफ सेबी चाहिए. तो सेक्शन 7A पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस टू मेक रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स. यहाँ पे बेसिकली 3 पावर्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या क्या कर सकता है. दे में रेस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स, दे में इंपोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स कि सिर्फ उनको ही, उन्हीं मेंबर्स को वोटिंग राइट मिलेगा जिनके सामने कोई मैटर प्लेस किया जाए. दैट द वोटिंग राइट्स विल बी गिवन ओनली टू दोज मेंबर्स फॉर द मैटर्स प्लेस बिफोर देम. सेकंड इज एवरी मेंबर विल बी इंटाइटल्ड ओनली टू 1 वोट. कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कितना भी शेयर है, मेरे को 1 वोट का ही राइट मिलेगा. इससे क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा. एंड थर्ड इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर्स टू अपॉइंट देयर प्रॉक्सी, कि मैं अपना प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा. तो 3 रेस्ट्रिक्शंस दैट द स्टॉक एक्सचेंजेस कैन impose is that the restriction of voting rights will be given only to the members in respect of the matters which is placed before them. Second is every member will be entitled to 1 vote irrespective of the shareholding. And third is the restriction to appoint a proxy. And fourth is such other incidental, consequential and supplementary matters. And चारों के लिए क्या चाहिए? सेबी का अप्रूवल चाहिए and that will be notified in the official gazette. टॉकिंग अबाउट सेक्शन है कि कैन द स्टॉक एक्सचेंजेस सेट ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता क्या है? बेसिकली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ऑल द अदर इंसिडेंटल मैटर्स. तो ये सारे जो चिन्नी मुन्नी वाले काम है, चिन्नू मुन्नी वाले काम है, मतलब पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट है, डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है, इंसिडेंटल मैटर्स है. दिस इज द पर्पस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. First of all, earlier all these functions used to be exercised by a clearing house, और अब इसको corporate में convert कर दिया clearing corporation. तो can they set up a clearing corporation? Yes, with the approval of SEBI. And SEBI will again see whether it is in public interest, in the interest of investors, and SEBI will allow again in the notification in official gazette. सिमिलरली सेक्शन 13A एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर. तो क्या यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर सेट कर सकते हैं क्या? यस, विद द अप्रूवल ऑफ सेबी. एंड व्हाट इज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर? इट इज जस्ट ए एडिशनल ट्रेडिंग रिंग. इट्स जस्ट ए एडिशनल ट्रेडिंग रिंग और इट्स ए एडिशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी दैट द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफर. इट्स ए एडिशनल ट्रेडिंग रिंग और एडिशनल ट्रेडिंग फैसिलिटी दैट द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफर टू इट्स इन्वेस्टर्स कि वो लोग सिक्योरिटीज खरीद सके या बेच सके आउटसाइड द नॉर्मल ट्रेडिंग फ्लोर. ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनली ज्यादा दिखता था, आजकल ज्यादा नहीं दिखता है. अगेन सेम चीज पब्लिक इंटरेस्ट में देखेंगे, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट दैट इज गोइंग टू कम. सो 3 कॉन्सेप्ट्स मिले जुले हैं, हमने साथ में देख लिया. उसके बाद पावर ऑफ सेबी टू डायरेक्ट रूल्स. कैन द सेबी डायरेक्ट द स्टॉक एक्सचेंजेस टू मेक द रूल्स?
Can the stock exchanges direct the companies to amend the rules? The answer is yes, obviously yes. But SEBI will do that after consulting with the governing body of stock exchange. SEBI क्या करेगा, governing body of stock exchange से consult करेगा and it may direct the stock exchanges to make some rules or to amend some such rules. And if the stock exchanges direct the stock exchanges, if the SEBI directs the stock exchanges to amend the rules, such rules must be amended within 2 months. 2 महीने के अंदर rules amend करना होगा. और अगर 2 महीने के अंदर rules amend नहीं किया, SEBI will itself amend the rules and notify the matter in the official gazette. तो सेक्शन 8, कैन द सेबी डायरेक्ट द स्टॉक एक्सचेंजेस टू अमेंड द रूल्स? द आंसर इज यस आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. एंड सपोजिंगली अगर सेबी वहां पे डायरेक्ट करता है, दोस रूल्स हैव टू बी अमेंडेड विद इन 2 मंथ्स एंड इफ द रूल्स आर नॉट अमेंडेड विद इन 2 मंथ्स, सेबी विल अमेंड द रूल्स इटसेल्फ एंड नोटिफाई अबाउट द सेम इन द ऑफिशियल गैजेट. नाउ we are coming to some of the powers of central government, section 11 and section 12. Do remember section 11 and section 12. Now we are coming to the powers of central government. section 11 is central government क्या कर सकती है, गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर सकती है. मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज था, स्टॉक एक्सचेंज हैड अ गवर्निंग बॉडी, स्टॉक एक्सचेंज हैड अ गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी में इट हैड इट्स चेयरमैन, इट हैड इट्स वाइस चेयरमैन एंड सेवरल अदर पर्सन्स. तो सपोजिंगली अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, दे आर नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स, दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू इज, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू एन ऑर्डर टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी. मतलब ऑल ऑफ दिस विल बी रिमूव्ड, ये सारे लोग हट जाएंगे. एंड बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा, नया चेयरमैन, नया वाइस चेयरमैन, ये सारे लोग अपॉइंट कर देंगे. एंड ऑब्वियसली सबसे पहले व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू गिव अ रिटन नोटिस टू द गवर्निंग बॉडी, they are going to give a written notice to the governing body. They are going to specify the reasons ki look, these are the different reasons and because of these reasons we are removing you. So first of all, the central government is going to give a written notice to the governing body. It is going to specify the reasons, and opportunity of being heard must be given. And basically what is going to happen is that the governing body is going to get a right to make its representation, and if still if the CG is not satisfied, it can issue a notification in the official gazette, it can supersede the governing body, and the new vice chairman will be appointed. That is going to happen. That is section 11 of the SCRA. and the wordings जो यूज हुए, आप अगर मेन बुक से पढ़ोगे वहां पे जो wordings यूज हुए बहुत ही हैवी यूज हुए. notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, मतलब जो भी दूसरे कानून में लिखा है बाहर में जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सुपरसीड कर सकती है और कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता. Section 12, power of central government to suspend business of members of stock exchanges. Can the central government suspend the business? एक होता है suspension, suspend कर दिया governing body को. Now this is power of central government to suspend the business of recognized stock exchanges. Even that is also possible, but only in the event of emergency. Section 12. एंड द इनिशियल पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी 7 days. इनिशियली कितने दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, 7 दिन. बाद में 7 दिन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा. तो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12. Section 11, power of central government to supersede governing body of a recognized stock exchange. Section 12, power of central government to suspend business of recognized stock exchanges. And then the power to notify areas. That is, central government has a power, this is section 13, central government has a power to declare a state or area as a notified area. कि भाई ये जो एरिया है, ये जो स्टेट है, यहाँ जो भी ट्रेडिंग होगा सारा का सारा वॉइड होगा. तो सीजी हैज सच पावर. So section 11, 12 and 13, these are the 3 sections which basically talks about the power of central government. Section 11 talking about the power of CG to supersede the governing body of stock exchange. Section 12 talking about the power of CG to suspend the business of recognized stock exchange. Section 13 power to notify areas. Now we have section 15, and section 15 is something very very important. Exam में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. Members may act as principal in certain circumstances. Now what is the general rule? जनरल रूल ये है कि सपोजिंगली आई एम ए मेंबर मतलब आई एम द ब्रोकर, आई एम रिप्रेजेंटिंग ए क्लाइंट. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोई ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरे क्लाइंट का रिटन कंसेंट ना मिले. आई थिंक बहुत लॉजिकल है. अगर मैं मेंबर हूं, या लॉजिकली सोचो यार, तुम मेंबर हो, तुमने कोई ब्रोकर को हायर किया, तो क्या तुम्हारा ब्रोकर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है बिना तुम्हारे रिटन कंसेंट के? द आंसर इज नो. तो सेक्शन 15 ऑफ द SCRA एक्ट सेज दैट नो मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज shall in respect of any securities enter into any contract as a principal with any person other than a member,
एक्सेप्ट टेकिंग द रिटन कंसेंट। मतलब नॉर्मली क्या होगा कि कोई भी मेंबर किसी भी क्लाइंट, कोई भी मेंबर क्या नहीं करने वाला किसी भी प्रिंसिपल के लिए, ब्रोकर इज डिनोटेड एज द मेंबर एंड द क्लाइंट इज डिनोटेड एज द प्रिंसिपल। नो मेंबर ऑफ अ recognized stock exchange shall enter into any contract on behalf of the principal without taking his written consent। लेकिन एक्सेप्शन इज दैट सपोजिंगली यहां पे क्या हुआ कि रिटन कंसेंट जितना टाइम नहीं है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन व्हाट कैन बी डन इज द ऑरल कंसेंट में बी टेकन। ऑरल कंसेंट में भी टेकन कि आप ऑरल कंसेंट ले लो प्रिंसिपल का, आप 3 दिन के अंदर रिटर्न कंसेंट ले लेना। आप ऑरल कंसेंट ले लो और 3 दिन के अंदर रिटर्न कंसेंट ले लेना, और जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली डिस्क्लोज कर दो कि यू आर एंटरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। So normal situation is that no member can act on behalf of the principal without taking his written consent. But in exceptional circumstances, if the written consent has not been obtained, then क्या कर सकते हो कि you can secure confirmation from such a person within 3 days. आप पहले ट्रांजैक्शन एंटर कर लो, 3 दिन में रिटर्न कंफर्मेशन ले लेना एंड क्लियरली डिस्क्लोज इन द मेमोरेंडम दैट यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, so that is a proviso that is given, now again a further proviso is added in section 15 और बोला कि भैया कंसेंट चाहिए ही नहीं, रिटर्न कंसेंट भी नहीं चाहिए, 3 days बाद भी नहीं चाहिए, when the contract is a closing out contract मतलब सपोज कॉल ऑप्शन खरीदा on the basis of client, the written consent was needed, but to close out the call contract, टू एग्जीक्यूट द कॉल कॉन्ट्रैक्ट कोई रिटर्न कंसेंट नहीं चाहिए बिकॉज ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ है। तो टू क्लोज आउट एनी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नो रिटर्न कंसेंट इज नीडेड, लेकिन अगेन प्रॉपर डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड इन द मेमोरेंडम दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सो सेक्शन 15 इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 15 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27। सेक्शन 15 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27 टाइटल ऑफ डिविडेंड। अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, सेक्शन 27 टाइटल ऑफ डिविडेंड। व्हाट डज दिस सेक्शन सेज? ये सेक्शन क्या कहता है? सपोज शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर राम। मिस्टर राम इज द ट्रांसफरर. Mr. Ram has transferred the shares in the name of Mr. Shyam. So Mr. Shyam is the transferee. ठीक है, Mr. Shyam कौन है यहाँ पे? Transferee. सवाल is, question is, who is entitled to dividend? ऑन रिकॉर्ड डेट। तो सेक्शन 27 ऑफ द SCRA एक्ट सेज दैट नॉर्मली क्या होता है भाई, यू नो वेरी वेल कि जो भी रजिस्टर्ड होल्डर होता है ही इज इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। जो भी रजिस्टर्ड होल्डर होता है ही इज इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। तो नॉर्मली यहां पे क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर्ड होल्डर होगा वही इंटाइटल्ड होगा टू द डिविडेंड। जो भी रजिस्टर्ड होल्डर होगा वही क्या इंटाइटल्ड होगा टू द डिविडेंड। मतलब मिस्टर राम हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द सिक्योरिटीज टू मिस्टर श्याम एंड दिस ट्रांसफर इज फॉर ए कंसिडरेशन। बट द प्रॉब्लम इज दैट कंपनी हैज नॉट रजिस्टर्ड द शेयर्स येट इन द नेम ऑफ मिस्टर श्याम। तो हु इज इंटाइटल्ड टू डिविडेंड इन दैट केस? मिस्टर राम। बट लॉजिकली हु वाज इंटाइटल्ड? मिस्टर श्याम, राइट। सो यहां पे what the law says, what section 27 of SCRA act says is, for example मान लीजिए dividend becomes due on 1st of June. Dividend becomes due on 1st of June. अगर within 15 days, मतलब by 15th of June, the transferee क्या करे? ट्रांसफरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, he delivers all the relevant documents to the company for registration, he will be entitled to the dividend, otherwise he will not be entitled to the dividend. मतलब in question they will be giving you dates. Dividend became due on 1st June and you know all the documents were deposited by the transferee by 14th of June. Who will be entitled to the dividend? What will be your answer if the documents were deposited by 20th of June? Who will be entitled to dividend? तो इस तरीके से वो आपसे क्या करने वाला है, क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ ये भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहां पे ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है, सो अगर यहां पे ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है, इट विल टेक द टाइम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव को टाइम लगेगा टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम।
और सपोज देयर इज ए लॉस, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट हो जाता है, वो गुम जाता है. सो अगेन देयर विल बी अ टाइम टू गेट द न्यू सर्टिफिकेट, या फिर लेट अस से डिले इन पोस्ट, देयर इज ए डिले इन पोस्ट. तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर 15 डेज क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है. और हावेवर एक और क्लैरिफिकेशन यहां पे दी गई है कि सपोजिंगली अगर even after submitting all the documents the company has given the dividend to transferor, the company will not be held liable. अगर कंपनी ने डिविडेंड ट्रांसफरर को दे भी दिया, कंपनी लायबल नहीं होगा, बिकॉज नॉर्मल रूल तो यही कहता है, सेक्शन 123 तो यही कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड होल्डर है उसी को डिविडेंड मिलेगा. सो दैट इज जस्ट गिविंग ए काइंड ऑफ सेफ्टी टू द कंपनी. एंड डू रिमेंबर दैट the provisions of section 27 are applicable mutandis to collective investment scheme oblique mutual funds. That is 27A oblique 27B. मतलब the concept is going to remain the same, only the section number is going to change. तो ये चीज भी आप क्या कर लोगे, ध्यान रख लोगे. That is section 27 title to dividend. So section 15 and section 27 are two very very important sections. उसके बाद अगेन कमिंग टू द अपील वाला पार्ट. आई टोल्ड यू कि अपील का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉमन रहने वाला है. एंड अगेन डिटेल्ड के लिए आप क्या करोगे, जो अपील वाला वीडियो है उसको रेफर करोगे. तो यहां पे अगेन व्हाट आर द हायरार्कीज इन्वॉल्व्ड. अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या देखा, पावर ऑफ सेबी, पावर ऑफ सीजी. नाउ कम्स द पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एंड द पावर ऑफ recognized stock exchange is to delist the shares of the company after giving an opportunity of being heard. Now what is going to happen is that जब स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी के शेयर को डिलिस्ट करेगा तो द एग्रीव्ड पार्टी माइट फाइल एन अपील. तो यहां पे स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट द अपील कैन बी मेड टू सेक्रेटरीज एपीलेट ट्रिब्यूनल. नाउ डू रिमेंबर कि सेक्रेटरीज एपीलेट ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है. दैट इज व्हाई अगेंस्ट द सेक्रेटरीज एपीलेट ट्रिब्यूनल द अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, बट ओनली ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ. ठीक है. तो यहां पे स्टॉक एक्सचेंज ने ऑर्डर दे दिया टू डिलीज द सिक्योरिटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. द अपील हैज बीन मेड टू द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल. नाउ डू रिमेंबर द अपील पार्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इन एससीआर, सेम यू आर गोइंग टू सी इन सेबी. यहां लिखा है 15 डेज, सेबी में देखोगे 45 दिन. सेट में कंडोन द डिले, सेट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन 6 months, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बी सेंट टू बोथ द पार्टीज. अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेट यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, बट ओनली ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ. And last concept that we are going to see, and then I'm going to mark you some questions, some concepts on the study mat for your practice. Compounding of offenses. Same concept of SEBI में देखोगे. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना, बता देना कि मैंने ये कॉन्ट्रावेंशन किया है, एटलीस्ट मुझे फाइन पेनल्टी से बचा लो. तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मींस ट्रूली एक्सेप्टिंग ऑल द कॉन्ट्रावेंशंस यू हैव डन एंड आस्किंग द रेलिवेंट अथॉरिटी कि भैया गिव मी रिलीफ फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम द पेनल्टी पार्ट, एटलीस्ट फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट पार्ट. तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन कैन बी मेड एनी टाइम. Do remember which offenses can be compounded. Only those offenses where imprisonment is not mandatory. Only those offenses where imprisonment is not mandatory can be compounded. Any offense where imprisonment is mandatory, मतलब वहां पे लिखा है fine and imprisonment and or both. Fine and imprisonment, वहां पे लिखा है fine and imprisonment. Compounding possible नहीं है. कंपाउंडिंग वहीं पॉसिबल है जहां इंप्रिजनमेंट ऑप्शनल है. फॉर एग्जांपल जहां ओनली फाइन लिखा है या फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ लिखा है, देयर कंपाउंडिंग इज पॉसिबल, अदरवाइज कंपाउंडिंग इज नॉट पॉसिबल. एंड देयर आर टू अथॉरिटीज फॉर कंपाउंडिंग इन दिस चैप्टर. वन इज सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड देन वी हैव द कोर्ट. ठीक है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर. एक आप याद करोगे सेक्शन 3, दैट इज टॉकिंग अबाउट ग्रांटिंग द रिकॉग्निशन, गिविंग द एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन. Section 4 grant of recognition. 4B which talks about corporatization oblique demutualization.
5 टॉक्स अबाउट विड्रॉवल, देन 3 सेक्शंस हमने साथ में किया था, 7A, 8A, 13A, दैट इज पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड द रूल्स या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या फिर एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। देन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 हमने साथ में किया था, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 11 इज दैट इज पावर ऑफ सीजी टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी एंड 12 इज बेसिकली सस्पेंशन। देन सेक्शन 8 पावर ऑफ सेबी टू अमेंड द रूल्स। सेक्शन 15 that is member not to act as principal, and section 27 that is title of dividend, and section 28 that is non applicability of the SCRA act। तो ये सारे सेक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। एक चीज मैं आपको रिकमेंड और करूंगा, I have opened the new syllabus study mat. I'll be advising you to go through a few areas from the new syllabus study mat। क्या क्या go through करना है एक बार बता देता हूं मैं आपको। You see in the starting of the chapter there is example given in the study mat, a company Cookies Private Limited। बहुत ही basic question है, unexpected है, but because it is given in the study mat might just be asked in exam। So एक बार आप रेफर कर लोगे, just take this example on companies Cookie Private Limited, ठीक है। study mat page number 1.4 new study material। अगेन एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ एसएफएम बट इट हैज बीन गिवन इन एससीआरए एक्ट एज वेल। पेज नंबर 1.9 न्यू स्टडी मटेरियल एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर विवान, जहां 400 शेयर्स की बात हो रही है, बेसिकली एसएफएम का कॉन्सेप्ट है, दैट इज गिवन इन एससीआरए एक्ट। आप एक बार इसको भी रेफर कर लोगे। नाउ यू सी पेज नंबर 1.12 एक चार्ट दिया है, सिर्फ न्यू सिलेबस वालों को ये चार्ट रेफर करना है, ओल्ड सिलेबस वालों को रेफर नहीं करना है, राइट। एक चार्ट दिया, रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। दिस चार्ट इज टू बी रेफर्ड ओनली बाय द न्यू सिलेबस स्टूडेंट, नॉट बाय द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। Similarly, page 1.15 there is a chart that is given, no member shall be elected to as a member। अगर आपकी उम्र 21 ईयर से कम है, या फिर यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ बैंकरप्ट, या राइट, या फिर यू हैव बीन कंपाउंडेड विद द क्रेडिटर्स, यू आर कन्विक्टेड ऑफ ए फ्रॉड, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिफॉल्टर, तो आप मेंबर नहीं बन सकते। तो रूल्स के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए है कि आप मेंबर कब नहीं बन सकते हो। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे, जस्ट रेफर द कीवर्ड्स, जस्ट रेफर द कीवर्ड्स। एंड ओनली फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, सिर्फ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है, not for the old syllabus students। Similarly, पेज नंबर 1.18 में जस्ट द बेसिक रेफरेंस, सिर्फ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को एक आइडिया लेना है दैट जो भी बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है दैट इज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 years तक क्या करना है, प्रिजर्व करना है। देन कौन कौन सा रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करना है, एक नाम दिया है, कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल्स, जस्ट ए जनरल अंडरस्टैंडिंग, 2-3 डॉक्यूमेंट भी देख लिया, काम चल जाएगा। प्रिजर्व 5 साल तक करना है। मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, काउंटर फॉल्स और डुप्लीकेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स 2 साल तक मेंटेन करना है। माइट बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज, सो सिर्फ इतना मार्क करते जाओ जो मैं बता रहा हूं आपको। सेक्शन 7 के अंदर every recognized stock exchange shall before the 31st of January in each year furnish an annual report to SEBI about the activities in the previous calendar year। mark these students, again only for the new syllabus students, सिर्फ new syllabus students के लिए MCQ में पूछा जा सकता है। every recognized stock exchanges shall before the 31st day of each January in each year or within extended time of SEBI furnish an annual report to the SEBI about the activities done in the previous year। Page number 1.31 delisting of securities। What are the alleged grounds on which the stock exchanges can delist the securities? जहां पे ये 6 ग्राउंड्स दिए हैं। अगेन सिर्फ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट मार्क कर लेना है। कंपनी हैज इंकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कंपनी 3 साल से लॉसेस पोस्ट कर रही है, कंपनी का नेगेटिव ट्रेड वर्थ है, ट्रेडिंग हैज बीन सस्पेंडेड फॉर मोर देन 6 months,
securities have been traded infrequently during the last 3 years. The directors or promoters have been convicted under the SEBI Act or the Depositories Act. या फिर address of the promoters are not known. Shareholding of the company has come below that minimum level of 51% जो हमने कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन स्कीम में देखा था. तो ये सारे ग्राउंड्स है जहां पे डिलिस्टिंग हो सकती है. तो एक बार न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स खाली इस कॉन्सेप्ट को रेफर कर लेंगे. दे विल बी रेफरिंग दिस. एंड एट लास्ट ऑफ द चैप्टर जो है एक पेनल्टी का शीट दिया हुआ है. पेनल्टी का अगेन जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल्ड में हमने ये चीज की है बिकॉज वो पेनल्टी का डेडिकेटेड वीडियो है. देर आर सम कॉमन पेनल्टीज गिवन इन SCRA. जैसे इफ यू सी फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और रिटर्न्स टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, फेलियर टू मेंटेन बुक्स और रिकॉर्ड्स, फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट्स, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस. ये चारों पेनल्टीज आप देखो सेम है. एटलीस्ट 1 लाख रुपीज, मिनिमम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज पर डे अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए. मतलब ये चारों के चारों ऑफेंसेस में पेनल्टी सेम है. फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और रिपोर्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, फेलियर टू मेंटेन बुक्स एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट्स, फेलियर बाय ये सब ब्रोकर और ब्रोकर टू एड्रेस द इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस. तो चारों केसेस में आप देखोगे पेनल्टी सेम है. 1 लाख रुपीज मिनिमम है, 1 लाख रुपीज पर डे फॉर ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज. राइट. सिमिलरली यहां पे आप देखोगे दो केसेस जहां पे पेनल्टी बिल्कुल सेम है. एक्सेस डिमेटेरियलाइजेशन और डिलीवरी ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, या फिर फेलियर टू फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न टू SEBI और फेल्स और नेग्लेक्ट्स टू मेक और अमेंडेड रूल्स और बाई लॉज. एटलीस्ट 5 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज. अगेन कॉमन पेनल्टी है. राइट. एंड ये जो भी पेनल्टी वगैरह रियलाइज होता है दैट गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास जाता है. सो इतना इंफॉर्मेशन आपको एडिशनली ध्यान रखना है. और न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को इसलिए एडिशनली पढ़ना है बिकॉज आपके एग्जाम के लिए आप मान के चलें कि दिस चैप्टर विल गिव यू मिनिमम वेटेज ऑफ 8 मार्क्स इन द एग्जाम. तो वट एवर वी हैव डिस्कस्ड प्लस 3 to 4 एरियाज वी हैव मार्क्ड, इतना आपको करके चलना है. राइट. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट.